Hi, good evening, everyone. We'll just start in a couple of minutes. Good evening, everyone. Welcome to today's webinar on Introduction to Loan Products. As you would be aware that we at PL Capital, we are partnered with Andromeda, which is one of the largest corporate DSA in the country. Andromeda has a presence in over 100 plus cities with 400 plus branches and 4,000 plus employees. And they have been currently disbursing around 75,000 crores of loan. And they do loans across all categories. So today we have with us Mr. Nilesh Mohite, who is a veteran in the financial services industry, having worked with banks, NBFCs, and currently with Andromeda. His experience ranges about 2.5 decades in this uh, lending business and overall financial services. We are very pleased to have Mr. Nilesh with us, and I would request Mr. Nilesh to take us through a brief presentation on what is Andromeda all about so that our people get that strength and confidence about our partner and what are the products that we deal with and then how do we go about. And as we get the questions, I would request all the participants to put the questions on chat, which I'll put across to Mr. Nilesh and get it answered. So over to Mr. Nilesh. Thank you for being with us and welcome to today's webinar, Mr. Nilesh. Over to you. Thank you so much, Vinit ji. Good evening, everyone. Myself, Nilesh Mohite है. मेरा नाम नीलेश मोहित है, and I am with Andromeda since last 13 months. Recording in progress. We have started operations. Andromeda has started operations in 1991. Okay, and then 2006 started operation in 1991. Moved to multi-bank platform in 2006-2007. Non-Mumbai expansion began 2010 to 11. 2024, we have launched one Andromeda app. Okay, started insurance business in 2015 and launched loan distribution by leveraging agent
by 2012. Annual loan disbursal 84,000 crores. Employees pan India 4,000 plus. Branches pan India 450 plus. Location 100 plus. Loan partners 140 plus. Insurance partners 15 plus. Agent network 25,000 plus. Customer on our platform 10 million plus, which is pan India. The Andromeda advantage: independent and unbased financial solutions, multiple products under one roof, large force of 25,000 plus agents, vastly experienced team focus on quality and strong partners, 140 plus banks and financial institutions, strong network providers, all India distribution access. One Android is feature packed. This is calling on the go, insurance, easy onboarding, loyalty program, rule engine, value access, multi-product, data engagement, credit card, alerts, real estate, data security. The one Android helps Andromeda and our partners to grow business manifold. Loan solutions, home loans, balance transfer home loans, loan against property, unsecured business, unsecured personal loan, loan against shares, purchase of commercial property, lease rental discount, education loan, ODCC working capital. Top lenders for personal loans in Andromeda. These all the top bankers and NBFCs like Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance, Kotak Mahindra, Aditya Birla, Axis, Cholamandalam, IndusInd, InCred, Piramal, Standard Chartered Bank, Bandhan Bank, all those banks are there. So we have done the so far business financial year 22-23 INR 5,565 crores, and financial year 23-24 INR 9,776 crores. Top lenders for business loans: Bajaj Finance, Chola, Aditya Birla, Tata Capital, ICICI Bank, IDFC Bank, HDFC Bank, Axis Bank, L&T Finance, Kotak Mahindra, SCB, Neo Growth, Yes Bank, Hero FinCorp, Poonawalla, Clicks Capital. Home loans. Purchase of under construction property. The rate starts between 8.5 to goes up to 12%. That depends on customer civil score, loan amount, and profile. Purchase of ready properties. The loan to value ratio 90% of the agreement value or market value, whichever is lower. So ratio I tell you later on. The home loan business we have done financial year 22-23, 27,798 crores, and 23-24 we have done the business 34,918 crores. So top lenders is same HDFC, ICICI, Axis, Kotak, Punjab National Bank, Central Bank, SBI, HSBC, Shriram Finance, Aditya Birla, Bajaj Housing, L&T, ICICI Home Finance, and all that. Key features I will tell you on different loan product. This is written: loan against property lab can be used for the following end uses: purchase of machinery, closure of that also I will tell you once I will come on product. Okay, I will give the entire details about the product, how the product works. This is again loan against property. We have done the business in financial year 22-23, 22,594 crore, and 23-24 INR 30,867 crores. Again, all those same banks which we have discussed earlier.
This is LTV. I will tell you later on. Commercial property purchase, again the LTV and rate. That again depends on a customer profile, CIBIL score, everything that I will tell you once I will come on this product. Lease rental discounting again is same. Okay, the lease rental discounting, the benefit, business expansion, property owners can be leverage the loan, expand their property portfolio, tax benefits, owning more properties allow for tax deduction, maximizing financial advantage. Balance cash flow, EMIs are covered by rental income. This I will cover you how the EMI will cover. Other loan categories, the balance transfer loan, commercial property purchase loan, working capital and machinery loan. Other loan categories like balance transfer loans, commercial property purchase loan, working capital loan, and machinery loan. Now we will cover everything after this finish. Okay. So I will start you with personal loan. I will start with you guys personal loan. Now personal loan हम उनको दे सकते हैं जो सैलरीड पर्सन हो, जिसको मंथली सैलरी मिलती है। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप विनीत सर को बता दीजिए, वो मुझे बता देंगे। मेरा आवाज आ रहा है सबको? डन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पर्सनल लोन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हम सैलरीड पर्सन को देते हैं, जैसे आप और मैं हूँ, ओनली फॉर सैलरीड पर्सन। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज आरबीआई का नॉर्म्स है। आरबीआई कहता है कि जो सैलरीड बंदा है उसको आप कम रेट में पर्सनल लोन दो। उसी को अगर हम कंपेयर करेंगे बिजनेस लोन ना, तो बिजनेस लोन एक सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल कोई बंदे को ही दे सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको कवर करता हूँ। पर्सनल लोन तो मैंने बता दिया आपको कि ओनली फॉर सैलरीड। अब बिजनेस लोन जो है ना, सिर्फ बिजनेस लोन को दिया जाता है, बट उसमें क्या कवर होता है, वो जो फंड्स हैं वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर बिजनेस, नॉट फॉर अदर थिंग्स। बट पर्सनल लोन जो है वो आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, ओके, आपके हॉलीडेज के लिए, आपके होम रेनोवेशन के लिए, आपको आपके नेटिव प्लेस में फार्म हाउस बनाना है या बंगलो बनाना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें मल्टीपल मल्टीपल आपके इंड आते हैं। तो इसलिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 10.5, इट गोज अप टू 14 to 15% ऑल्सो। द रीजन बिहाइंड दैट कि एग्जाम्पल अभी विनीत जी है, उनका प्रोफाइल हाई लेवल है, HNI क्लाइंट है, ओके, उनको रिक्वायरमेंट है XYZ अमाउंट का, उनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, ओके, बेसिस ऑन दैट द पर्सनल लोन ऑफर्स, ओके। अब देन बैंक डिसाइड्स कि इनको क्या रेट देना है। हाँ, अब उसमें ये भी कवर होता है कि उनकी, जैसे से माई एग्जाम्पल, माई सैलरी इज 1 लाख और मैं ऑलरेडी 80,000 का EMI भर रहा हूँ और मुझे और लोन्स चाहिए, तो वो लोन्स मुझे मिल सकता है क्या? कोई मुझे बोल सकता है? एनीवन? हेलो? अच्छा, तो अगर मुझे मेरा ऑलरेडी ऑब्लिगेशन 80,000 का है और मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज नेट है, तो मुझे उसके ऊपर और कोई लोन नहीं दे सकता है। हाँ, बट मेरा 1 लाख रुपीज मेरा सैलरी है और मुझे 5 लाख का 10 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे मिल सकता है। पर्सनल लोन का टर्म होता है 1 ईयर टू मैक्सिमम 5 इयर्स, 12 महीने से लेकर 60 मंथ्स तक का। आप इसको विद इन 6 मंथ्स में भी क्लोज कर सकते हो, ओके। कोई बैंक्स उस पर पेनल्टी चार्ज करती है, कोई बैंक उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं करती है।
तो ये पर्सनल लोन के जो फायदे हैं, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ गिरवी या मॉर्गेज रखना नहीं पड़ता। पर्सनल लोन में आपको कुछ गिरवी या मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये पर्सनल लोन के ये बेनिफिट्स है। अभी हम आते हैं बिजनेस लोन पे। जैसे मैंने कहा, बिजनेस लोन जो है ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, इनको दिया जाता है। और वो जो फंड्स हैं वो उनके बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अब इनका जो लोन का टर्म होता है 1 year to 5 years, that depends on bank, NBFC and private financial institute like ICICI Bank, SCB, HSBC, Deutsche Bank and all that. ओके, तो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 16% up to goes 26 to 28%, which is yearly. इसका टर्म तो मैंने आपको कहा, इसमें आपको पेनल्टी जरूर लगता है। आप चाहे आज लोन लो और 6 महीने के बाद क्लोज करो, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी। अब ये दोनों लोन का मैं प्रोसेस आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है। मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया एबीसी बैंक के पास। मेरा एप्लीकेशन चला गया, उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोसेस में मेरे घर का और मेरे ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा। ओके, ये सारे रिपोर्ट्स जनरेट होती है और उनके पास उनके बकेट में जाती है, वो एबीसी बैंक के पास जाती है। अब एबीसी बैंक का एक क्रेडिट मैनेजर होता है, वो चेक करता है कि नीलेश मोहिते जो है, इनका सिविल स्कोर क्या है, इनकी सैलरी कितनी है, इनको लोन कितना चाहिए, इनका सिविल कैसे इफेक्ट कर रहा है। लाइक सिविल, सबको सिविल तो पता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। हाँ, तो सिबिल बेसिकली एक बॉडी है जो सारे बैंकों से डेटा कलेक्ट करती है और सारे बैंक को प्रोवाइड करती है। तो मेरा सिबिल में देखा है कि मेरा स्कोर है 850 और पूरा लोन का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा है। ओके, फिर वो क्रेडिट मैनेजर जो है पीडी करता है। ही विल कॉल मी एंड ही विल आस्क मी कि आपका एप्लीकेशन आया हुआ है पर्सनल लोन के लिए, द लोन अमाउंट इज दिस। ओके, इसका एंड यूज क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा एंड यूज है, मुझे मेरा घर रेनोवेशन करना है। तो वो एक बार प्रोसेस हो गया, ठीक है। वो सब कुछ होने के बाद वो प्रपोज करता है उसके सीनियर को, और उसका सीनियर फिर उसको अप्रूव करना है कि डिक्लाइन करना है, वो डिसीजन लेता है। और वो जब अप्रूव होता है तो फिर उसके बकेट में छोड़ देता है, उसको मेल कर देता है कि इनका लोन सैंक्शन हो गया है। और वो एंड्रोमेडा को इन्फॉर्म करता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, आपके क्लाइंट का लोन सैंक्शन हो गया। ये सैंक्शन होता है, होने के बाद डिस्बर्सल प्रोसेस होता है। अब डिस्बर्सल प्रोसेस दो चीज की तरह है, एक है फिजिकल और एक है डिजिटल, ऑनलाइन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। बिकॉज आफ्टर कोरोना अभी नॉर्मली बैंक्स एंड एनबीएफसी ने वो ऑनलाइन प्रोसेस किया हुआ है। आपको एक लिंक आता है, लिंक क्लिक करना है, लिंक क्लिक के बाद उनके जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको फिनिश करना है। वो जब फिनिश होता है तो उसके बाद आपका लोन डिस्बर्स हो जाता है। हाँ, अब इसमें से पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन, जो भी आपको प्रोसेसिंग फीस कमिटमेंट किया जाता है और उनके जो चार्जेस होते हैं, जो बैंक के चार्जेस होते हैं, वो उसमें से कैपिटलाइज होता है। अब मेरा लोन अगर 10 lakhs अप्रूव हुआ एंड वन पर्सन इज प्रोसेसिंग फी एग्जाम्पल, सो 10,000 विल कैपिटलाइज फ्रॉम माई लोन अमाउंट। अगर उसमें मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो वो भी कैपिटलाइज होगा, उसमें उनका जो स्टैम्प ड्यूटी है लोन्स का वो भी कैपिटलाइज होगा। तो ये चीजें लोन अमाउंट से कैपिटलाइज होती है। उसके बाद जो फंड्स, बैलेंस फंड्स है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अभी बैंकिंग, ये आपका ईएमआई जो स्टार्ट होता है, हर बैंक का एक डिफरेंट डेट होता है। नॉर्मली जो डेट होता है 5th, 7th, 10th, 5th, 7th, 10th, नॉर्मल जो डेट मैंने देखा हुआ है लास्ट 20 ईयर्स से, तो ये डेट होती है 5th, 7th और 10th। उसके बाद आपका ये रेगुलर, जैसे पर्सनल लोन में यही होगा, वही सेम बिजनेस लोन में होगा, आपका सेम चीज है। तो ये हमने कवर कर लिया है अभी पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन। नीलेश जी, अब जी देयर आर टू क्वेश्चंस राइट, ये दोनों को लेके। जी One question is, I have a client who owns 50% of the company
and he wants to purchase another 50% stake from his partner, which loan would be preferable and what will be the interest rate range? We will offer the product loan against property. हेलो, हाँ जी बताइए. एक तो कस्टमर को बेस्ट डील करना है, और कस्टमर का अगर होम लोन कहीं चल रहा है कोई बैंक में, ऑलरेडी कोई बैंक में अगर कस्टमर का होम लोन चल रहा है, तो हम उसको बैलेंस ट्रांसफर करके उसके ऊपर टॉपअप दे सकते हैं. तो फायदा ये होगा कि कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा. टेन्योर 20 से 25 साल तक का मिल सकता है, और एंड यूज उनका सही है तो वो काम हो जाएगा सर, विच इज वन. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अगर होम लोन नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी फ्री है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए वो जा सकते हैं. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम उनको 15 साल का टर्म दे सकते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल. ओके, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट माइट बी दैट 1.5 to 2% का डिफरेंस होता है. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल एंड क्लाइंट सिविल स्कोर. तो ये दो प्रोडक्ट हम उनको ऑफर कर सकते हैं. तो ठीक है. थैंक यू मिस्टर शाह. You can please reach out to me or we'll discuss. So this will be in the category of business loan, is what it is being shared by the our person, right? Okay, you can continue, Neeraj ji. We'll get to the other questions later. हम आते हैं, हमारा दो प्रोडक्ट कवर हुआ है, जिसमें अनसिक्योर्ड, मैंने कहा अनसिक्योर्ड में ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं करनी पड़ती है, ना मॉर्गेज करना पड़ता है. अनसिक्योर्ड का वही एक बेनिफिट है कि आपको आपका घर या आपको कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी या आपका कोई भी गोल्ड या कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखना पड़ता है, मॉर्गेज नहीं करना पड़ता. अब आते हैं हम होम लोन पे. अब होम लोन तो सबको पता होगा. होम लोन जो है सबको पता होगा, सबको घर चाहिए होता है. आज हर एक की यही की ये होती है कि बस मैं एक मेरा छोटा सा घर ले लूं. तो होम लोन जो है सबको मिलता है, सैलरीड से लेके सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, ये सबको मिलता है. अब इसमें भी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है 8.5 से लेके 12% तक, 12% तक. होम लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, 8.5 से लेके 12% तक. अब इसमें भी सेम चीज कवर होती है कि आपका प्रोफाइल, आपका सिविल स्कोर, आपका लोन अमाउंट, ये सारा चीज कवर होता है. उस डिपेंड्स ऑन दैट वो रेट ऑफर करते हैं. अब इसमें मैंने रेट तो आपको कह दिया कि 8.5 से लेके 12% तक का रेट है. इसमें जो टेनियर दिया जाता है, जो टर्म दिए जाते हैं, वो रहते हैं, आप मिनिमम 5 ईयर्स से लेके 30 साल 30 ईयर्स तक जा सकते हैं. अब होम परचेज जो है, एक तो है बिल्डर परचेज, जैसे बिल्डर्स है, रहेजा हो गया, कल्पतरू हो गया. ओके, द मेनी बिल्डर्स, दिल्ली में डीएलएफ है. ओके, तो काफी सारे बिल्डर्स हैं. तो एक होता है बिल्डर परचेज. तो उसमें क्या होता है, नीलेश जी ने प्रॉपर्टी लिया हुआ है रहेजा बिल्डर से, तो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन रहेजा बिल्डर एंड नीलेश मोहिते. आई एम सॉरी, बार बार मैं मेरा ही नाम ले रहा हूँ. तो एक होता है बिल्डर परचेज. सेकेंड होता है रीसेल परचेज. रीसेल परचेज में क्या होता है कि मैंने रहेजा से प्रॉपर्टी ली थी. ओके, अब ये प्रॉपर्टी मैं विनीत सर को बेच रहा हूं, तो वो हो गया रीसेल परचेज. अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, दो चीज होता है. एक तो बिल्डर का और नीलेश का एग्रीमेंट है, और सेकेंड एग्रीमेंट होगा नीलेश का और विनीत सर का. इसको बोलते हैं चेन ऑफ एग्रीमेंट. ओके, अब जब हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें प्रोसेस का बहुत बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें आता है एक तो मेन पार्ट जो मैंने आपको पर्सनल लोन में कवर किया, वेरिफिकेशन वगैरह, वो तो होता ही है सब चीज का. इसमें ऐड करते हैं हम एक लीगल और एक टेक्निकल. अब ये लीगल जो होता है, ये क्या होता है, हर बैंक के पास ना एक उनका वेंडर होता है. हर बैंक के पास एक लीगल का वेंडर होता है, एक टेक्निकल का वेंडर होता है. अब वो वेंडर क्या कवर करता है कि जैसे विनीत जी ने अप्लाई किया है आईसीआईसीआई बैंक में. अब विनीत जी को जो आईसीआईसीआई बैंक वाला एम्प्लॉई है, वो बोलेगा कि सर मुझे आपके लीगल के डॉक्यूमेंट चाहिए, टाइटल डॉक्यूमेंट चाहिए. तो मुझे विनीत जी को फोटोकॉपी देना पड़ेगा. मेरा एग्रीमेंट बिटवीन बिल्डर टू रहेजा बिल्डर टू बिटवीन नीलेश मोहिते और मेरा और विनीत जी का, तो दोनों एग्रीमेंट
आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगी, आईसीआईसीआई बैंक ये डॉक्यूमेंट्स उनके वेंडर के पास भेजेगा, जो लीगल वेंडर है। अब वो लीगल वेंडर उनका डॉक्यूमेंट चेक करेगा हमारा, और उसके बाद एक वो रिपोर्ट बनाएगा वेदर टाइटल डीड इज क्लियर और नॉट क्लियर। तो इसमें ये कवर होता है बिल्डर परचेस में और रीसेल में। बिल्डर परचेस में और रीसेल में ये कवर होता है। तो बिल्डर परचेस में तो एक ही एग्रीमेंट होता है, बट रीसेल में काफी सारा एग्रीमेंट होता है। बिल्डर टू फर्स्ट ओनर टू सेकंड ओनर टू थर्ड ओनर टू फोर्थ ओनर। तो ये पूरा चेन ऑफ एग्रीमेंट उनके वेंडर को जाता है। अभी इसमें और एक चीज मैं आपको ऐड करता हूँ, इन बिटवीन दिस 4 ओनर है और थर्ड वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो क्या होता है? तो उसके ऊपर उनको उनका अप्रूवल लेना होता है, उनके लीगल वेंडर का, या जो बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी लीगल टीम है, उनको वहां से उनको ओपिनियन लेना होता है। तो ये चीज इसमें ये होता है, लीगल का लीगल का ओपिनियन लेना पड़ता है। अब आते हैं हम टेक्निकल पे। अब टेक्निकल क्या होता है कि जैसे मेरी और विनीत जी की डील हुई है 1 करोड़ में, और ये प्रॉपर्टी है समझ लीजिए बोरोली में। अब उनका टेक्निकल वेंडर जो है, जो उनका इंजीनियर है, वो साइट विजिट करेगा और मेजर करेगा पूरे हाउस को मेजर करेगा कि कितना स्क्वायर फीट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिल्डिंग कितना पुराना है, जो टॉवर है वो कितना पुराना है, ग्राउंड प्लस कितना स्टोरी का बिल्डिंग है, एम्यूनिटीज क्या है, ये सारी चीजों क्लियर करेगा। ये सारी चीज क्लियर करने के बाद वो रिपोर्ट इश्यू करेगा, रिपोर्ट इश्यू करेगा कि इसके मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपया है, या कहेगा वो 80 लाख रुपया है। वो टेक्निकल कवर करता है। तो ये होम लोन्स में होता है। अब आते हैं हम लोग होम लोन बैलेंस ट्रांसफर पे। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है कि किसी का लोन चल रहा है, रेपको रेपको करके एक एनबीएफसी है, वहां पे उनका रेट चल रहा है 14.5% होम लोन का। ओके, तब उन्होंने उनकी मजबूरी थी, ले लिया था रेपको होम फाइनेंस से। बट अभी उनका सैलरी अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा खासा है, मार्केट वाले भी अच्छा खासा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसफर करना है लोन, और मुझे कुछ टॉपअप भी चाहिए, तो जिसको हम कहते हैं होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। तो हमने क्या किया, रेपको से लोन उनका ट्रांसफर किया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनको कहा कि सर मैं आपको 8.5 में दे दूंगा। तो आप देखिए कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 14.5 टू 8.5। हाँ, अब इसमें क्या है, होम लोन्स और बैलेंस ट्रांसफर में भी प्रोसेसिंग फी तो हर लोन में लगती है, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, ये हर लोन में लगता है, तो इसमें भी आपको लगेगा। ओके, तो ये बैलेंस ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। वी कैन बैलेंस ट्रांसफर ऑल्सो लोन्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो इसमें मल्टीपल चीजें होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी को इसमें बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं, लाइक फादर एंड सन। फादर इज रिटायर्ड, ओके, फादर इज रिटायर्ड, इज अ गवर्नमेंट, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड सन इज वर्किंग विद से प्रभुदास लीलाधर। ओके, प्रभुदास लीलाधर, अब फादर को उनकी पेंशन है, मंथली पेंशन इज 50,000 रुपीज। सो वी कैन एड बैक इनकम ऑल्सो। तभी उनको उन्होंने लोन लिया था, अब उनको ऐसा करना है कि तब अभी उनका ईएमआई जा रहा है 1 लाख रुपीज। ओके, बट उनको ईएमआई कम करना है, तो वो बैलेंस ट्रांसफर करके हम उनके फादर की इनकम ऐड करके हम उनको टेनियर ज्यादा दे सकते हैं और ईएमआई कम करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। अभी होम लोन और बैलेंस ट्रांसफर में आप कोई भी पार्ट पेमेंट करने जाते हो ना, कोई भी पार्ट पेमेंट करो, एनी अमाउंट लाइक मोर देन 25,000, तो वो आप कर सकते हो, विच इज देयर इज नो चार्जेस फॉर पार्ट प्रीपेमेंट। चाहे आप पार्ट प्रीपेमेंट करो या लोन को पूरे क्लोज करो, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं है। फोर क्लोज करो, आप कभी भी कर सकते हो। जैसे आज आपने लोन लिया, 10 दिन के बाद आपको पैसा मिल गया, 10 दिन बाद आपको पैसा आ गया कोई चीज का, आप उसको क्लोज कर सकते हो। ओके, और कोई आपको पेनल्टी नहीं भरना है इसमें। तो ये फुल क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं इसमें। टॉपअप लोन के लिए मैंने होम लोन बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉपअप लोन बता दिया कि 1 करोड़ का उनका लोन था, आज उनका आउटस्टैंडिंग है 70 लाख रुपया, और उनको 30 लाख रुपया टॉपअप चाहिए था। तो 70 लाख हमने रेपको को पैसा दे दिया। जब रेपको से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गया, सोसाइटी से एनओसी आ गया, फिर हमने उनको 30 लाख रुपीज रिलीज कर दिया। तो ये कवर हो गया हमारा होम लोन और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर।
अब आते हैं हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट है, बेसिकली मेजर क्लाइंट जो इसमें होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और वो होते क्यों है, उसका रीजन ये है कि उनको बिजनेस पर्पस के लिए कैपिटल लगता है। अभी कैपिटल कहाँ से खड़ा करें, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं और फंड्स ले लेते हैं बैंक से। क्योंकि बैंक में अगर अगर क्लाइंट का सिविल स्कोर प्रोफाइल अच्छा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 9.5 से लेके 16 टू 17%, जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अभी आगे इसमें क्या आता है, आपका एंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका एंड यूज जो होता है कि बैंक ने अगर कल आपको फंड्स दिया तो आप ये कहाँ यूज कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है। जो मैंने आपको पर्सनल लोन में जैसे बताया था कि लोन एप्लीकेशन उनके बकेट में जाता है, बकेट में जाने के बाद सारा वेरिफिकेशन होता है, फिर क्रेडिट मैनेजर एक पर्सनल डिस्कशन करने के लिए कॉल करता है। वो कहता है कि सर दिस इज योर लोन एप्लीकेशन फॉर लोन अमाउंट सो एंड सो, ओके, मुझे ये आपका पर्सनल डिस्कशन करना है, आपके कंपनी का प्रोफाइल बताइए, कितने साल से आपका बिजनेस विंटेज है, आपके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। तो ये सारा पीडी में कवर होता है जिसको पर्सनल डिस्कशन कहते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेजर क्लाइंट जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप मेजर देखेंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस वाले को ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बट मेजर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर उनको रहता है। मैन्युफैक्चरर रहेगा तो उसको रॉ मटेरियल परचेस करना होता है। ओके, ट्रेडर रहेगा तो अगर वो क्वांटिटी में माल लेता है तो उसको अच्छा प्राइस मिलता है। सेम मैन्युफैक्चर का चीज़ है, अगर क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल परचेस करता है तो उसको अच्छा प्राइस मिलता है, तो उसका मार्जिन भी अच्छा होता है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आप आपका घर मॉर्गेज कर सकते हो, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हो, आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हो। हाँ, गोडाउन है, आरसीसी स्ट्रक्चर है गोडाउन, तो वो भी आप कर सकते हो। सो इसमें भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, आपका बंगलो है तो वो मॉर्गेज कर सकते हो। अगर रेंट आउट किया हुआ प्रॉपर्टी है तो वो भी मॉर्गेज कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में कवर होती है। बैलेंस ट्रांसफर वाला सेम चीज है। कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज जो है ना, मेजरली ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, सैलराइड भी खरीदता है, बट सैलराइड क्यों खरीदेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी? अगर वो खरीदेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर वो खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके कुछ काम का नहीं होता है सैलराइड पर्सन का। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए काम का होता है, उसको गोडाउन के लिए यूज करना होगा या ऑफिस के लिए यूज करना होगा, मल्टी चीजें होती है जो यूज करना होता है। तो कमर्शियल परचेस के लिए भी मेजरली रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 11% से लेके इट goes up to 14%. Okay, so this is the commercial property, commercial industrial purchase, commercial गाला, ये आप कर सकते हो। अब आते हैं हम लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पे। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास प्रॉपर्टी ह्यूज प्रॉपर्टी है जिसका 10,000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है। ओके, से ग्राउंड फ्लोर पे बहुत अच्छा काम है, 10,000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है और वो आपने दिया हुआ है जो टाटा का क्रोमा शोरूम है उनको आपने लीज पे दिया हुआ है। अब उसका लीज जो आपको आ रहा है, मंथली रेंटल जो आ रहा है वो आ रहा है कम से कम 18 से 19 लाख रुपए महीने का। 18 से 19 लाख, 18 लाख रुपए महीने का आपको रेंटल आ रहा है एवरी मंथ। अब मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करूंगा और इसका जो रेंटल आएगा ना ये मेरे एस्क्रो अकाउंट में आएगा और मेरा ईएमआई में कवर कर लूंगा और बाकी का पैसा मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी वर्कआउट करते हैं कि इनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्योंकि पहला जो उनका लिवर लाइसेंस एग्रीमेंट साइन होता है वो 5 साल के लिए होता है। फिर उसके बाद जो वापस उनको रिन्यू करना है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये होता है, आज आप मुझे 18 लाख दे रहे हो, ओके, नेक्स्ट ईयर आप मुझे 10% बढ़ा के दोगे, ओके, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में वापस 10%। तो वो सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। सो बेस्ड ऑन दैट हम उसका एलिजिबिलिटी निकालते हैं और उनको कहते हैं कि सर मैं आपको 15 करोड़ का लोन दे दूंगा। तो 15 करोड़ से उनको लोन मिल जाता है अगेंस्ट द लीज रेंटल डिस्काउंट। लीज रेंटल डिस्काउंट, अभी इसमें क्या होता है ना, मेजरली जो बिल्डर्स रहते हैं ना, बिल्डर्स जहाँ अच्छा लोकेशन से है, वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, बेचते नहीं है, वो अपने पास रखते हैं, ओके, और उसको रेंट पे दे देते हैं। बिल्डर्स हुए, काफी सारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं, वो भी वैसे ही करते हैं।
ओके, और उनके पास प्रॉपर्टी रख लेते हैं, बेचते नहीं है, लीज पे चढ़वा देते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म तक का वो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग चलते रहता है। ओके, ये भी चीज अगर आप कवर करेंगे तो इसमें सैलराइड कैटेगरीज नहीं आती है, ज्यादा जो आती है सेल्फ एम्प्लॉयड ही आते हैं। ओके, तो ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है। ओके, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट फंडिंग ये छोड़ दीजिए। लोन अगेंस्ट शेयर्स जो है, लोन अगेंस्ट शेयर्स अगर ये कवर करना है, लोन अगेंस्ट शेयर्स ऐसा है, दिस इज अगेन फंडिंग दी अगेंस्ट योर शेयर्स, अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड्स, अगेंस्ट द बॉन्ड्स। जो आपके पास कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, अगर वो अप्रूव्ड है, एग्जाम्पल विनीत सर के पास 10 करोड़ का स्टॉक्स पड़ा हुआ है और उनके पास स्टॉक्स में अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट पड़ी है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बाटा है, अदानी है, रिलायंस है, टाटा टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सारा 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। तो मैंने विनीत जी को कहा कि सर इसके अगेंस्ट में मैं आपको 5 करोड़ रुपया लोन दे सकता हूँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 10.75, इट गोज अप टू 14%। इसमें बेनिफिट क्या है कि आपने आज 5 करोड़ का लोन सैंक्शन करवा लिया, बट उसमें आपने फंड खाली यूज किया 1 करोड़ रुपया, ओनली 1 करोड़ रुपीज। ओके, सो द बैंक विल चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन ओनली ऑन 1 करोड़। इसमें क्या होता है, 5 करोड़ का हमने लोन सैंक्शन कर लिया और 1 ही करोड़ डिसबर्स किया हुआ है। ओके, 1 करोड़ डिसबर्स किया हुआ है तो बैंक आपको सिर्फ 1 करोड़ पे ही चार्ज करेगी इंटरेस्ट। ओके, 4 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी, द बैलेंस 4 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। तो इसका एक एडवांटेज है कि आज आपने 1 करोड़ यूज किया, आपको 15 दिन के बाद वापस 1 करोड़ यूज करना है, तो आप एंड्रोमेडा को बता दीजिए कि मुझे और 1 करोड़ चाहिए, तो हम आपको नेक्स्ट 1 or 2 वर्किंग डेज में आपको अनदर 1 करोड़ डिस्बर्स कर देंगे। बट इसमें जो आपका अप्रूव्ड स्टॉक होगा वही होगा, और ये बीएसई एनएसई लिस्टेड है। ओके, बीएसई एनएसई लिस्टेड है, तो वो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी के पास 50% स्टॉक है जो अनलिस्टेड है, जैसे आप पकड़ लो टाटा कैपिटल, अनलिस्टेड है। ओके, टाटा कैपिटल हुआ या और काफी चीजें हैं जो अनलिस्टेड है, जो वो कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी है और अनलिस्टेड है तो उसको हम क्लब कर सकते हैं लिस्टेड के साथ। जैसे अनलिस्टेड आपका है 5 करोड़ का स्टॉक, लिस्टेड है 5 करोड़ का स्टॉक, तो उसको 10 करोड़ का मर्ज करके हम उसमें कैसा एलिजिबिलिटी वर्कआउट करके आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट बता देंगे क्या होगा, उसमें हम कितना मैक्सिमम लोन आपको दे सकते हैं लोन अगेंस्ट शेयर्स में। इसमें भी प्रोसेसिंग फीस होता है, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। ओके, तो वो चीज है। अब आते हैं हम वर्किंग कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल लोन्स। बेसिकली वर्किंग कैपिटल लोन्स जो होता है ना, इज ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, इज ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या होता है वर्किंग कैपिटल में, अगेन द सेम, आपके 3 इयर्स के फाइनेंशियल पेपर्स लगते हैं आईटीआर के। वो फाइनेंशियल पेपर्स पे आपका सेल्स दिखता है कितना है, कि आपका टर्नओवर कितना हुआ है, उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसमें आपका नेट प्रॉफिट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, कितने आपने लोन्स लिए हुए हैं, ये सारी चीजें कवर होती है। ओके, बेस्ड ऑन दैट आपका एलिजिबिलिटी निकलता है। अभी मान लीजिए किसी क्लाइंट को हमने 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल दिया, तो वर्किंग कैपिटल में भी क्या होता है, उनका एक अकाउंट ओपन होता है से यस बैंक में, यस बैंक में उनका अकाउंट ओपन हो गया, 1 करोड़ हमने डिस्बर्स कर दिया। अब 1 करोड़ डिस्बर्स कर दिया तो ये नहीं है कि उन्होंने अगर यूज ही नहीं किया है तब हम उनको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, बट 1 करोड़ में से 5 लाख रुपया यूज किया है तो हम उनको खाली 5 लाख पे ही चार्ज करेंगे, हम उनको ये 5 लाख पे ही चार्ज करेंगे। बट इसमें भी है, प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करना पड़ता है, सेम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गाला, बंगलोज, ये सारा उसमें कवर होता है। तो वर्किंग कैपिटल में ये ओनली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ओनली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, इसमें पूरा ट्रैकिंग होता है, बैंक पूरा ट्रैक रखता है कि आप ये पैसा कहाँ घुमा रहे हो, पूरा ट्रैकिंग होता है इसमें वर्किंग कैपिटल में। ओके, आप किसी को भी दे नहीं सकते हो, किसी के बिना, आपके रिलेटिव्स में आप किसी को भी नहीं, आपके पार्टीज है उसके नाम से चेक जाएगा, बट अगर वो ट्रैकिंग करते हुए मालूम पड़ गया कि आपने यूज किया है तो इमीडिएटली आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, वो भी होता है उसमें। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स। अब आते हैं मशीनरी लोन्स। जो मशीनरी लोन्स है अगेन सेम,
कि कोई क्लाइंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट है, उसको इक्विपमेंट खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो उसके लिए उसको फंडिंग मिलता है। अगेन द टेन्योर इज सेम, मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 15 years। ओके, अगेन डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल। ओके, उसमें 100% लोन्स कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है एक्सेप्ट योर पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन। एक्सेप्ट योर पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में 100% लोन कोई भी बैंक, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। आप पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ मशीनरी लोन, फिर हम एलटीवी पे आते हैं कि क्या होता है एलटीवी। तो मशीनरी लोन्स में भी ऐसा होता है कि 60% और मैक्सिमम 70%, क्योंकि जब तक कस्टमर का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 100% तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें मशीनरी लोन्स में 100% नहीं होता है। और सीजीटी एसएमई है जो है, ये अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली फॉर एमएसएमई कस्टमर्स को ये लोन देती है, ओनली फॉर एमएसएमई कस्टमर्स। तो ये सारे लोन के प्रोडक्ट कवर होते हैं। अब इसमें जो है, इसमें मैंने कहा एग्जांपल पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में अगर आपका एलिजिबिलिटी बैठता है तो आपको 100% लोन मिलता है पर्सनल लोन में और अनसेक्योर्ड लोन में। जो बिजनेस लोन है, अनसेक्योर्ड बिजनेस लोन है। ओके, बट होम लोन और उसके नीचे जो प्रोडक्ट है होम लोन में आपको 100% फंडिंग नहीं मिलती। दैट डिपेंड्स ऑन योर लोन अमाउंट। जैसे बॉम्बे में है, बॉम्बे में क्या है, अप टू 30 lakhs 90% ऑफ द अग्रीमेंट वैल्यू और 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। एग्रीमेंट वैल्यू का 90% देते हैं और मार्केट वैल्यू का 90% देते हैं। ये होम लोन में होता है अप टू 30 lakhs। 30 lakhs के ऊपर जाता है तो फिर 75 अपना 80% देते हैं। आई एम सॉरी, अगर 30 एंड अबाउ जाता है तो 80% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू और 80% ऑफ मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। और 75 lakhs एंड मोर अमाउंट, 75 lakhs प्लस, तो होता है 75% ऑफ मार्केट वैल्यू और 75% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो ये एलटीवी का रेशियो है, ये एलटीवी का, जिसको लोन टू वैल्यू कहते हैं, कि लोन टू वैल्यू कहते हैं। ओके, तो ये चीज होता है एलटीवी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगेन सेम थिंग, कि आपका एलिजिबिलिटी है, आपने अगर 2 करोड़ के लिए अप्लाई किया, 2 करोड़ का आपका एलिजिबिलिटी है, तो वो 2 करोड़ का आपका लोन उसमें हम दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें एग्रीमेंट वैल्यू का रेशियो नहीं आता है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी थी 50 लाख में, 20 साल पहले खरीदी थी 50 लाख में, बट आज उसका वैल्यू है 4 करोड़ रुपीज 20 साल के बाद, तो हम उसको दे सकते हैं 2 करोड़ रुपया, बिकॉज 4 करोड़ रुपीज मार्केट वैल्यू आया है। मुझे 50% उसका एलटीवी देना है, जो 2 करोड़ में दे सकता हूँ, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, कस्टमर का एलिजिबिलिटी। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में वो ये नहीं है, आपका एग्रीमेंट वैल्यू का कंसर्न नहीं है। अगेन द बैलेंस ट्रांसफर इज सेम, कि आपका मार्केट वैल्यू अगर अच्छा है तो हम आपको बैलेंस ट्रांसफर में टॉप अप लोन भी दे सकते हैं मैक्सिमम, तो वो कवर होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी हम 100% नहीं देते, 60% 70% मैक्सिमम। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में मैंने कहा आपको एलिजिबिलिटी कितना आता है, मार्केट वैल्यू क्या है उसका, वो मायने रखता है उसमें लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में, कि मार्केट वैल्यू भी कवर करना होता है, उनका लीज भी कवर करना होता है, उनका एलिजिबिलिटी भी कवर करना होता है। ये कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट फंडिंग जो है ना, मेजरली बिल्डर्स को लगता है, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए देता है। वो तो बहुत बड़ा स्टोरी है उसमें। स्टोरी लाइक वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट, अगर कोई बिल्डर है उसको फंडिंग चाहिए तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का उसका पहला प्रीवियस काम होना जरूरी है। उतना अगर उसने काम किया है 1.5 लाख का, तो ही उसको फंडिंग मिलता है, नहीं तो इतना इजी नहीं है कि प्रोजेक्ट फंडिंग मिलना। लोन अगेंस्ट शेयर्स का 50% ऑफ एलटीवी, जिसमें अनलिस्टेड स्टॉक हम कवर कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैंने कहा कि अगेन वर्किंग कैपिटल इज सेम, उसका भी कोई आपको एग्रीमेंट वैल्यू का इश्यू नहीं आता है वहां पे। सेम 50 लाख पहले 20 साल पहले क्या था, तब एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख का था, आज 4 करोड़ का वैल्यू है, 2 करोड़ की फंडिंग चाहिए, हम उनको दे देंगे। मशीनरी लोन में कस्टमर का 30 to 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो 60 to 70% बैंक फंडिंग करती है। और सीजीटी एसएमए में डिपेंड करता है कस्टमर का प्रोफाइल, वो एमएसएमई क्लाइंट है कि नहीं, वो सारा चीज है। ये सारा चीज हमने कवर तो कर लिया। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, प्लीज यू कैन टेल मी, प्लीज यू कैन टेल टू विनीत जी।
सो नीलेश जी, एक क्वेश्चन है, पर्सनल लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है? सर पर्सनल लोन के ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपीज है, ओके, तो उसमें जो है कस्टमर कहता है कि मुझे लोन चाहिए 9 लाख रुपया। कस्टमर की सैलरी है 1 लाख रुपीज, बट ही इज आस्किंग कि मुझे 9 लाख का लोन चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि 1 लाख जो नेट सैलरी है उसका हम 70% FOI पकड़ते हैं, जिसको FOI को हम बोलते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। FOR का फुल फॉर्म है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। तो 1 लाख का हमने 70% किया, वो आ गया 70,000। वो 70,000 आया तो उसको हम डिवाइड करते हैं पर लाख EMI से। अब अगर पर लाख EMI समझ लीजिए 1,800 रुपीज है, अगर उसमें उतना बैठता है तो उनको हम वो दे देंगे। सर मैं वापस रिपीट करूं? आई थिंक इट इज क्लियर। आप जो कहना चाह रहे हैं कि पर्सनल लोन के लिए वन ऑफ द एलिजिबिलिटी और टेस्ट जो होता है, जो सवाल था, जी दैट द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो हैज टू बी लुक्ड इनटू कि आज यस सर। मेरी करंट इनकम कितनी है और मेरे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस कितने हैं, कितने उसके हैं? हिसाब से जो डिजायर्ड लोन है वो उसकी जो EMI आ रही है वो उस रेशियो में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है और कितनी बैठ रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। So this is perhaps the answer is. The next question is from Mr. Rahul Katwal, which I will perhaps answer. LAP or CC, how we can close what payout for associate. So Rahul, I will get back to you on this, that how do we close what payout for associate. I can only inform everyone at this point that any lead, any clarification, you can just put a mail to loans@plindia.com. I've shared the email ID in the chat box. So you can just send a mail to loans@plindia.com. JSL Parmar is the single point of contact for loans. Her contact details are also available. We'll share with you again on mail to all of you. So you just share that, and in terms of all the payouts, associates, etc., that we will internally share with you. Right. Any more questions, please? Basically, top up need good relation with bank or concerned department for fast loan. नीलेश जी, ये सवाल है कि बेसिकली टॉप अप नीड गुड रिलेशंस विद बैंक और कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फास्ट लोन। बेसिकली टॉप अप नीड गुड रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। That only depends on, again I am telling you, customer profile, market value of property, the eligibility, ये सारी चीजें कवर होती है उसमें। ये सारा चीज कवर होता है उसमें। अगर क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ओके, सिंगल बाउंस नहीं है, ओके, अगर उनकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है बट ऑब्लिगेशन खाली 1 लाख का है, तो कोई इश्यूज नहीं है इसमें। बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो यही देखता है कि मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वो मेन ये देखता है। अगर 1 करोड़ का मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी का और क्लाइंट बोलता है मुझे 50 लाख चाहिए, तो बैंक आपको जितना फास्ट होता है उतना फास्ट करके देते हैं वो लोग, क्योंकि 50% LTV है। ओके, आप कट टू कट करने जाएंगे ना तो वहां इश्यू आता है। सो for the benefit of all, I can also share that whenever you have any requirement or any lead for this loan, when you are sharing the lead on loans@plindia.com, please do share some basic documents and the requirement in detail, so that when we pass on the lead to Andromeda, Nilesh ji and his team can work it out, will reach out to you immediately and get a solution to that. So Rahul, I think your questions are valid, that why ICICI Bank has considered him as a builder and not a contractor. So these are very specific cases which depends and varies from institution to institution.
I can only assure you one thing, that with Andromeda, the kind of expertise and experience that they have, that any such cases, they can understand the requirement profile and then give a solution. So it is not only for one bank or one institution, they can come up with 2-3 options that what is available and what is the best in the given situation, right? So that is possible. And you are right in saying that a DSO of Kotak and yes have closed the case, which was not there. Perhaps, yes, these are situations, especially in the lending business. It's all also about how the case is presented, how the case is interpreted. So those are the factors, how the papers are submitted, how the papers are presented, right? So Rahul, I appreciate your query, and we will certainly consider all these things while we are working along with our partner Andromeda in offering these loan products to all our clients and through our network of sub-brokers. Any more questions, please? If you have, please do write down on the chat box. And today was the introductory session that we wanted just to introduce the loan products. We will get into more details later on, and we can get into specifics, team-wise seminars on particular products. The idea is that we want to offer this as one of the offerings from PL Capital's bouquet of products, right? So let's look into this, keep doing. And thank you, Nilesh ji, for your time and for your presentation. And we will certainly keep bothering you again and again for things which come to us. Hope this partnership looks forward to a big leap. And as you tend to cross 1 lakh crore of perhaps dispersal this financial year, we would also like to play a role and part. Right. Thank you so much, everyone, for joining in, and thank you, Nilesh ji. Thank you. विनीत जी, थैंक यू हाँ सो जी, मच, थैंक यू सो मच। मुझे और दो चीजें ऐड करनी थी जो हाँ जी, बहुत बोलिए। जो बहुत 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 अच्छी चीज है। मतलब इसमें आपका दो चीज कवर हो सकता है। एक तो आपका इंश्योरेंस कवर हो सकता है। एक जो है, अगर हम किसी को बिजनेस लोन पीएल कैपिटल लीड सोर्स करता है और वो अगर लोन हम डिसबर्स करते हैं, तो वो लोन अमाउंट को पीएल कैपिटल इंश्योरेंस कवर कर सकता है। तो आपको दो टाइप का रेवेन्यू मिलेगा। एक तो एंड्रो से रेवेन्यू मिल जाएगा, एंड सेकेंड रेवेन्यू इज दैट आपको इंश्योरेंस का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। राइट। जैसे हमने लास्ट मंथ में गणेश का एक लीड क्लोज किया था, गणेश सुतार, राइट? गणेश सुतार फ्रॉम पुणे, उसका एक क्लाइंट था, उसको हमने 10 लाख का लोन दिया था, ओके, और उसका विंटेज खाली 1 साल का था। उसका विंटेज जो उसका बिजनेस एक्सपीरियंस है ना, खाली 1 साल का था। नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, मिनिमम 3 साल का विंटेज लगता है। ये मैंने कवर नहीं किया था, बट आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये मिनिमम 3 साल का बिजनेस विंटेज होना चाहिए या फिर सैलरीड का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। बट हमारे पास एक एनबीएफसी है, अगर किसी कस्टमर का विंटेज ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स, ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स, अगर किसी का विंटेज 1 साल का ही है, 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो हम उसको अनसेक्योर्ड लोन दे सकते हैं अप टू 75 लाख, अप टू 75 लाख। तो उसमें पीएल कैपिटल को ये बेनिफिट है कि जैसे उसका इंश्योरेंस लोन डिसबर्स होता है, आप उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दो, उसका इंश्योरेंस कवर कर दो आप। ठीक है जी। इंश्योरेंस कवर कर दो। तो ये दो चीजें ऐड करनी थी। 1 साल के विंटेज में आज कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एनबीएफसी हो या बैंक हो, कोई करता नहीं है। मिनिमम 3 साल का विंटेज लगता है, बट एक राइट। एनबीएफसी है जहाँ पे हम कर सकते हैं। डन है। थैंक यू सो मच विनीत जी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हैप्पी सो मच सेलिंग। everyone. Thank you. Thank you.